Honorable society members, respected teachers, and my dear parents and children, on behalf of St. Thomas Educational Society and St. Thomas High School, I take the opportunity to wish you all a very happy 73rd Republic Day. Freedom in the mind, strength in the words, pureness in the blood, pride in our soul, zeal in our hearts. Let's salute our India on Republic Day. Republic Day marks an important event in Indian history. This commemorates the enactment of the Constitution of India, which came into effect on 26 January 1950 and made the nation into a republic. Dr. Rajendra Prasad was elected first President of India on this day. The main attraction of the day is Republic Day Parade, which begins at Rajpath, Delhi and ends at India Gate. On 26 January 1950, Indonesian President Sukarno was the first chief guest on the very first Republic Day Parade of India. It took 166 days, spread over 2 years, 11 months and 18 days to finish writing the Constitution. There are just two original handwritten copies of the Constitution, one written in Hindi and one in English. It has been preserved in helium-filled cases in the Parliament of India. Never forget the heroes who sacrificed their lives to bring up this glorious day. दे सलामी इस तिरंगे की जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे. Hello, good morning to all of you. A very happy Republic Day. First of all, I would like to thank you all for giving me such a great opportunity to speak on this special day. Since 1950, 26 January is celebrated as Republic Day in India. Because it was on this day in 1950 that the Indian Constitution came into existence. An interesting point to note here is that India got its independence on 15th of August 1947 from the British rule, which is celebrated as Independence Day in India. However, it was on November 26, 1949 that Indian Constitution was adopted. But the integration of this big nation and unifying the wide variety of cultural diversities was not done until January 26, 1950. That is when the Indian Constitution came into effect. Republic Day marks the celebration of empowerment of Indian citizens to select their own government. It is a national holiday which commemorates the process of establishment of the Indian Constitution. On this auspicious day, we
would like to pay our heartfelt tribute and homage to our brave, courageous, and fearless freedom fighters who had a great role to make our motherland free from the British rule. Now, let us watch and enjoy how nicely and vividly our little birdies represented some of the eminent freedom fighters of India. I'm sure you will like it. Jai Hind. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। Greetings to our respected teachers, my dear fellow students and others. I feel elated to speak in front of you all about today's occasion. We are here to celebrate India's 73rd Republic Day today. Republic Day, that is 26th January, marks the celebration of the implementation of Indian Constitution on this date in 1950. Indian Constitution is the longest written constitution in the whole world. India's freedom struggle has been noteworthy, where many freedom fighters had to sacrifice their lives so that India breathes the air of freedom. Indian Constitution is also the result of hard work of B.R. Ambedkar.
he drafted the Constitution which came into force on January 26, 1950. On this day, many schools and colleges around the nation organize flag hoisting and functions in their premises. We eat sweets and various Indian snacks on these occasions. Celebration in true sense means to realize the importance of being a republic nation and fulfilling our duties as true citizens. Let us all join hands to build a corruption-free and poverty-free society. Let's give this world to people who once had dreams about India and to us. The present of India, the future of India. Thank you. তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, তোমার শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মোর গাঁথা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও গো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে, ও মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে, তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে, তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, অন্ন মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू।
कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। I am Shubhanjali Porel from class 6. বীর ছেলে, কবি শ্যামাপ্রসাদ কর্মকার। 1889 ডিসেম্বরের 3 এই ছেলেটি জন্ম নিতেই দিদি নিল কিনে। শৈশবেতে হলো অনাথ, হারাই বাবা মাকে। অনাথ হলেও দিদির স্নেহ রইল ঘিরে তাকে। মেদিনীপুরে মঙ্গলিতে এই ছেলেটির বাড়ি। ছোট্ট থেকেই বড় মনের ছিল অধিকারী। পড়াশোনা তমলুকেরই হ্যামিল্টন স্কুলে। 10-এর সেবায় এগিয়ে যেত হৃদয় দুয়ার খুলে। ছিল গভীর স্বদেশ প্রীতি, দেশের প্রতি টান। স্বদেশ প্রেমে হলো বিভোর, আকুল হলো প্রাণ। বিপ্লবেরই মন্ত্র নিল, অস্ত্র নিল হাতে। শপথ নিল অত্যাচারী কিংসফোর্ড উৎখাতে। বুকে ঠাসা কঠিন শপথ, আগুন ঝরা আঁখি। লক্ষ্য পথে ছুটল ছেলে ও প্রফুল্ল চাকি। ভেবেই গাড়ি কিংসফোর্ডে বোমা দিল ছুড়ে। মিসেস এবং মিস কেনেডির প্রাণটা গেল উড়ে। পড়ল ধরা আদালতে, আদেশ হলো ফাঁসির। বললুম, এবার দাও মা বিদায়, একবার ঘুরে আসি। ফাঁসির মঞ্চে উঠল ছেলে, চারিদিক থমথম। দীপ্ত কণ্ঠে উঠল গে, বন্দে মাতরম। 1908 আগস্টেরই 11 কাক ভোরে। হাসি মুখে ফাঁসির দড়ি নীল গলায় পড়ে। ইতিহাসে হলো লেখা এই ছেলেটির নাম। কে এই ছেলে? বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম। নমস্কার।
করো পূর্ণ, কোনো বর্ষা করি চূর্ণ, করো পূরিত প্রেমরলি গুঞ্জে, দূরিত করি পাপ পুঞ্জে, তপতুঞ্জে, পুনর্বিকল করো জগত জনপুচ্ছা দুঃখ দৈন্য সবনাশী করো দূরিত ভারত রক্ষা ছাড়ো গো ছাড়ো শোক সজ্জা করো সজ্জা পুরো মঙ্গল করো ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেই দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশে প্রাণী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তরি এমন কালো মেঘে, তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে ওঠে, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশে রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা।
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आंचल तेरा रहीमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म सुहाजत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है नदी सुनहरी हरा समंदर है देश गीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला 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 सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मुस्कानों की टोली रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली बादों में रंग यादों में रंग रंग হেমোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে হেথায় দাঁড়ায় দুবাহু বাড়ায় নমি নর দেবতারে উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর
নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর, হেথায় নিত্য হ্যারো পবিত্র ধরিত্রীরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন। পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে রণধারাবাহী জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে। ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে, তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর। আমার শনিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর। হে রুদ্র বীণা বাজো বাজো বাজো, ঘৃণা করি দূরে যারা আছে আজো। বন্ধন আসিবে, তারাও আসিবে, দাঁড়াবে ঘিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি। হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণী। তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল জাগায় তুলিল একটি বিরাট হিয়া। সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালায় খোলা আজিদার। হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে সেই হোমানলে হ্যারো আজি জলে দুঃখের রক্ত শিখা। হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা। এ দুঃখ বহন কর মোর মন, শোনরে একের ডাক। যত লাজ ভয় করো কর জয়, অপমান দূরে থাক। দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান, জন্ম লোভিবে কি বিশাল প্রাণ। পোহাজ পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান। এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান। এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার। এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার। মার অভিষেকে এসো এসো তরা, মঙ্গল ঘট হয় নিজে ভরা। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে। আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए।
जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह दिन भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने त्याग और बलिदान बड़े पैमाने पर दिया। उसी का परिणाम फल है कि आज पूरा देश यह 73वां अर्थात 73rd गणतंत्र दिवस पूरे भारत मनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। यह गणतंत्र दिवस आखिर है क्या, क्यों मनाया जाता है, यह भी आप लोगों में एक प्रश्न उठता होगा। तो उसका एक संक्षिप्त इतिहास में आप लोगों के समक्ष
पेश कर दूं। ध्यान देने की बात है कि 26 जनवरी 1930 भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सभापति मोतीलाल नेहरू जी थे। लाहौर सेशन में, वहां पर रावी नदी के तट पर, वहां कांग्रेस का वह तैयारी चल रही थी। पूर्ण स्वराज दिवस का विधेयक जो था उस दिन पास हुआ रावी नदी के तट पर कि हम लोग अंग्रेजों से, यानी उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य पूरे देश में था, तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में एक क्रांतिकारी लहर पैदा हो चुकी थी। तो कांग्रेस के नेताओं ने उसमें पूर्ण स्वराज दिवस की शपथ ली। वैसे पूर्ण स्वराज दिवस पर हमारे महत्वपूर्ण भूमिका, उसके लिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे तमाम नेताओं का यथक प्रयास रहा है। इन लोगों की मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य अधूरा नहीं, पूरा का पूरा चाहिए। तो 1930 के बाद हमारे देश के नेताओं ने पूरा शपथ ले लिया कि हर साल हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे, यानी हम अपने आप को याद करेंगे। हमें देश को आजाद कराना है पूर्ण रूप से, पूरी संप्रभुता भारत के हाथ में होनी चाहिए। इस विचार से तैयारी चल रही थी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें संविधान सभा में कई और गणमान्य सदस्य भी थे, जिसमें कृपलानी जी थे और सच्चिदानंद जी थे, और भी कई महान विभूतियां हमारे देश की इसमें थीं। 26 नवंबर 1949 को हमारा यह संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी 26 नवंबर को, यही कारण है कि इसको संविधान दिवस के रूप में मानते हैं। तो जब यह बातें हुई कि संविधान बनकर तैयार हुआ, अब हमारे देश में संविधान लागू होना चाहिए, आखिर किस दिन संविधान लागू हो, यह विचार लोगों के मन मस्तिष्क तल पर चल रहा था। तब हमारे संविधान सभा ने निर्णय लिया कि नहीं, 26 जनवरी जो कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में अब तक मनाया जाता रहा, इस 26 जनवरी को ही हम संविधान लागू करेंगे। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। यही कारण है कि इस 26 जनवरी को, यानी हमारी इस जनता के पास पूर्ण रूप से शासन आ गया, पूर्ण रूप से हम रिपब्लिक हो गए। यानी 1950 के बाद आज 73वां, यानी एक प्रकार से हम यह सुनहरा अवसर यानी रिपब्लिक डे मनाते चले आ रहे हैं हम। और इसके बाद यह याद रखें कि इस दिन 26 जनवरी को चारों तरफ पूरे देश में बड़े धूमधाम से हम इसे मनाते हैं, चाहे वो प्रांत में राजधानियां हों, चाहे हमारे दिल्ली की जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लाल किले से वहाँ पर हमारे तमाम सैनिकों की कलाएं, उनकी झांकियां सब देखते ही बनती है। यानी वो परेड, दिल्ली का परेड जो है, आज भी देखने के लिए तमाम देशवासी जुटते हैं। यानी इतना महत्वपूर्ण, इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि लोग विदेशों से भी उस परेड को, हमारे नौजवानों की कलाओं को और भारतीय संस्कृति यानी प्रांतीय स्तर पर विभिन्न प्रांतों की कलाओं को और उनकी संस्कृतियों को भी हमारा यह परेड दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से इस रिपब्लिक डे की महत्वपूर्ण तैयारियों के बारे में चर्चा किया, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को। यह रिपब्लिक डे के दिन, यानी पूरे देश में छुट्टी रहती है, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोग मौज मस्ती करते हैं। लेकिन हमें याद रखें कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग दिया, अपने खून पसीने को बहाया, तब इस दिवस को प्राप्त किया। इसलिए
हमारे लिए भी यह प्रयास है, प्रयास होना भी चाहिए कि हम लोग भी उनकी उस दिवा स्वप्नों को आगे बढ़ाते रहें। हमें भी त्याग करने की आवश्यकता है। आज हम जहाँ पर हर भारतीय नागरिक को केवल यह नहीं कि हम यानी इस दिन छुट्टी में आज मौज मस्ती करें, नहीं, आज का दिन हमें याद करना है, अपने उन महान शहीदों को याद करना है और शपथ लेना है कि देश को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर अंतिम रक्त की बूंद भी इस देश के लिए अगर देना पड़े तो उसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। कि आज भी जैसे उस समय विषम परिस्थितियां थी हमारे देश में, अंग्रेजों का एक प्रभाव था, उसके विरोध में हमारी देश की शक्तियां संघर्ष कर रही थी। आज भी पूरा विश्व या भारतवर्ष भी आतंकवाद की समस्या से, तमाम समस्याओं से ग्रसित है। आज भी तमाम जो विदेशी शक्तियां हैं भारतवर्ष पर हावी होने के लिए तैयार बैठी हैं। तो देश के नवयुवकों, आज भी आपको नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ भारतीय संस्कृति को और भारतीय जो हमारी पहचान है उसको बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अपनी भूमिका दर्ज करानी है। मैं दो पंक्तियों को और स्पष्ट कर दूं, दिनकर जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां रही हैं। सेनानी तुम करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, यमा नखत के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। भारतवासियों, हमें इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि अगर हम सही मायने में, अगर हम भारतवर्ष में जज्बात भारतवासियों में हो और नए संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पटल पर हम राज्य स्थापित कर सकते हैं। राज्य का स्थापित करने का मतलब मेरा शाब्दिक आशय यहाँ पर यह है कि हम ऊंचाइयों तक पहुंचे। वैसे भारतवर्ष की महिमा प्राचीन काल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने की बात है। गायंती देवा किल गीतिकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। यह भूमि ऐसी है कि यहाँ पर इस भारतवर्ष में देवता लोग भी, देवता गण भी अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। यह महापुरुषों का देश है। भारतवर्ष एक महान राष्ट्र है, उसकी महानता में आपकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। कोई भी देश महान होता है तो उसके पीछे हमारे देश की यानी वहां की जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे भारतवर्ष की पहचान इस श्लोक में मैं और अधिक स्पष्ट करूंगा। ध्यान दें कि भारतवर्ष उत्तर से, इसकी पहचान ध्यान दें, उत्तरम नेत्र समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दाक्षिणाम वर्षम तात भारतीयो नाम भारतीय यत्र संतति। एक विशाल राष्ट्र है और वह विशालता हम सभी के अंदर होना चाहिए, हृदय पटल पर, कि इसकी गरिमा को, इसकी अखंडता को, इसकी सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमें किसी भी मतभेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जातिगत, धार्मिक मतभेद या प्रांतीय मतभेद, ऐसे मतभेदों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, और ध्यान दे वह महाराष्ट्र से लेकर करके और पूर्व में यानी वह पूर्वी जो क्षेत्र है हमारे, वहां तक इसकी अखंडता को बनाए रखना है। और इसके साथ मैं अपना छोटा सा मंतव्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और ध्यान देने की बात है कि इसके साथ यह जो भारत की जो पहचान है उसको हर समय अपने आप में, अपने हृदय में उसको धारण रखें और अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का हर भारतीय को हर समय निर्वहन करने की। গাহি সাম্যের গান যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টান, গাহি সাম্যের গান। কে তুমি? পার্সি, জৈন, ইহুদি, সাঁওতাল, ভিলগারো, কনফুসিয়াস, চারবাক চালা, বলে যাও বলো আরো। বন্ধু যা খুশি হও, পেটে পিঠে কাঁধে মগজে, যা খুশি পুঁথিও কেতাব বও। কোরআন, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, টিপিটক, জেন্দাবেস্তা, গ্রন্থ সাহেব, পড়ে যাও যত শখ। কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শুল,
দোকানে কেন এ দর কষাকষি? পথে ফুটে তাজা ফুল, তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান, সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখো নিজ প্রাণ। তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার, তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল, সকলের দেবতার। কেন খুঁজে ফেরো দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি কঙ্কালে? হাসছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে। বন্ধু বলিনি ঝুট, এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট। এই হৃদয়ই সে নীলাচল কাশী, মথুরা বৃন্দাবন, বুদ্ধগয়ায়ে, জেরুজালেমে, মদিনা কাবা ভবন। মসজিদেই মন্দিরেই গির্জাই হৃদয়, এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়। এই রণভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহাগীতা, এই মাঠে হলো মেষের রাখাল, নবীরা খোদার মিতা। এই হৃদয়ের ধ্যান গুহা মাঝে বসিয়া সাক্ষ্যমুনি, ত্যাজিল রাজ্য মানবের মহাবেদনার ডাক শুনি। এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান, এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরআনের সামগান। মিথ্যা শুনিনি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই। We all know that the Indian Constitution came into effect on this very day, that is 26th of January, which is specifically known as the Republic Day of our country. Hats off to the makers of the Indian Constitution who had so meticulously integrated the diversity of our nation and framed policies for its smooth functioning. Indeed, it was a Herculean task. So children, let us all join our hands to be responsible citizens and serve our country honestly, which is the largest democracy of the world.